we have already discussed about asexual reproduction, and today onward we are going to discuss about the advantages of asexual reproduction. What are the advantages of asexual reproduction? Since I tell you the definition of asexual reproduction, that the formation of new species with the help of single parent is known as asexual reproduction. So the first advantage is the organism does not have to depend on another organism for carrying out reproduction, because a single parent is only needed. That is why asexual reproduction is very frequent phenomena, because dependency is not there. Number two, it take less time than sexual reproduction, as sexual reproduction needs more time. It need months about to produce new species, but in asexual reproduction more number of offspring can be produced in a shorter time, as you can see in the process of regeneration, in the process of binary fission and multiple fission. You can see multiple copies of new species are formed. Number three, the offspring are exact the clones of their parents. That means there is no change of DNA in them. That is why they are cloned to their parents. They are just similar. Clone to means they are just similar to their parents. They are identical to their parents. They have same property that their parents have. Desirable characteristic can be easily incorporated into plants with artificial vegetative propagation. That means you can now onwards you can grow the vegetables having qualities which you want. आजकल आप वैसे वेरिएंट्स डेवलप कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, जैसे आप चाहते हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि पपाया आप ग्रो करें जो कि सीडलेस हो। नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन ग्रो पपाया विच इज सीडलेस। सो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पटेटो, जो शुगर फ्री पटेटो होता है। दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिकॉज वी डोंट वांट शुगर, वी डोंट वांट to increase our sugar level, so we have created sugar free potato, and by the help of vegetative propagation we just maintain their amount. So desirable characteristic can be produced easily. Now what are the disadvantages of having asexual reproduction? Number one, single parents is involved, so there is negligible chance of variation. See, one aspect has two different things. एक ही चीज़ के दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। एक एडवांटेज है कि डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से वेरिएशन का चांस नहीं होता। मतलब कोई अपने पेरेंट्स के जैसा सिमिलर है, जो फ्लॉज पेरेंट्स में है वही प्लांट्स उसके, वही फ्लॉज उसके न्यू स्पीसीज में भी हैं। सो वो फ्लॉज मेंटेन रहते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता। Number second, in most of the cases in simple organisms, the parent generation ceases to exist after asexual reproduction. जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि हमने उस समय देखा था बाइनरी फिशन में क्या हुआ था, अमीबा ने अपना साइज ग्रो किया और वो दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया। जब वो दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका अपना आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, एकदम लूज हो गई। दैट मीन्स क्या हुआ, पेरेंट्स अपने आप को डिवाइड करके दो नया सेल बन गया, दो नई डॉटर सेल्स बने, दो नए अमीबा बने, लेकिन पेरेंट्स क्या हो गए, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। Asexual reproduction cannot give rise to biodiversity, which is important for healthy ecosystem. Now this point is very important. कैसे important है? Asexual reproduction से biodiversity नहीं होती है, यानी हमें अलग अलग तरीके के जीन नहीं मिलते, हमें अलग अलग तरीके के क्या नहीं मिलते, हमें अलग अलग तरीके की डीएनए नहीं मिलते, अलग अलग तरीके की हमें वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं, जिससे इकोसिस्टम मेंटेन होने में प्रॉब्लम होती है। इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा वेरिएशन होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। दैट मीन्स जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ही ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा, और जितना ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा उतने ही अमाउंट में इकोसिस्टम भी क्या होगा, हमारा हेल्दी होगा, हमारा स्टेबल होगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So let us talk now about the sexual reproduction. Sexual reproduction occur only in the angiospermic plants. That means the plants that bear flower. जिन plants में flower होते हैं उन्हीं plants में sexual reproduction होता है।
You all know that you all are aware about the fact that flowers are the reproductive part होते हैं किसी भी प्लांट का, लेकिन इस फ्लावर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. दिस you also studied in class 8 onwards also. क्लास 8 में भी आपने ये पढ़ा है. जो फ्लावर का स्टेमिन और पिस्टल होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेमिन और पिस्टल. स्टेमिन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. इस पिक्चर में देखिए एंथर और फिलामेंट दो पार्ट हैं स्टेमिन के. ऊपर वाला पार्ट एंथर है और नीचे वाला पार्ट स्टेमिन कहलाता है. सो दिस स्टेमिन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स. कहाँ पे होते हैं? एंथर्स में होते हैं, विच कंटेन्स द मेल जर्म सेल नोन एज मेल गैमेट. सो मेल पार्ट इज नोन एज स्टेमिन विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है. और एंथर के अंदर ये इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल होती है जिसे हम मेल गैमीट भी कहते हैं. पिस्टल जो कि बीच वाला पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसकी ओवरी के अंदर छोटा सा ओव्यूल होता है जिसमें फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमेट होता है. इसका हम डिटेल्ड स्टडी क्लास 8 में कर चुके हैं. As you can see here, I will explain you with the help of a cursor. This is pistil. Pistil is a female reproductive part. जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये वाला, वो कहलाता है स्टिग्मा. नीचे वाली लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है स्टाइल. और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर कहलाता है ओवरी. दिस इज स्टेमिन. इसका ऊपर वाला पार्ट कहलाया एंथर और नीचे वाला पार्ट है फिलामेंट. इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है जिसे हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं. पिस्टल के अंदर जो ये ओवरी है इसके अंदर छोटा सा ये ओव्यूल है, ये आपको दिख रहा है. इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट यानी फीमेल जर्म सेल होती है. सो in this slide you have already studied about two parts of flower. One is male part, that is known as the stamen. Stamen is divided into two parts, anther and filament. In anther pollen grains are there, and in that pollen grain male germ cell, that is male gamete, is present. And in female part is known as pistil. In female part is divided into three parts, that is stigma, style and ovary. This stigma, style and ovary, in which ovary has an ovule that contains the female gamete of female germ cell. इतनी बात समझ में आ गई होगी, I hope so. This diagram is very important for your exam purpose. Coming upon on the next, what is pollination? Now this pollination is also studied by us in class 8. ठीक है, क्लास 8 में हमने pollination के बारे में डिटेल में पढ़ा था. ठीक है ना. Pollination क्या है? The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a flower is called pollination. एंथर में से फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स का निकल के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलन ग्रेन. पॉलिनेशन मीन्स पॉलिन ग्रेन्स का इस एंथर में से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है. पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है? विंड की हेल्प से हो सकता है, वाटर की हेल्प से हो सकता है और इंसेक्ट की हेल्प से भी हो सकता है. बस अल्टीमेट एम क्या होता है कि किसी तरीके से एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए. लेकिन पॉलिनेशन भी अब दो तरीके का हुआ. कौन सा पॉलिनेशन? अगर ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. दैट मीन्स if the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower it is called self pollination. एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले और उसी की स्टिग्मा पर एंटर हुए, तब हम इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. एंड if the anther pollen grain from the one anther is transferred to some other flower, stigma of some other flower is known as cross pollination. अगर एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले, एक्सक्रीट आउट हुए और वो किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है? इंसेक्ट की हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है और वाटर की हेल्प से होता है. यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर
क्रॉस पॉलिनेशन अकरिंग हियर, बटरफ्लाई आए, बटरफ्लाई ने एंथर में से पॉलन ग्रेन इसके पैरों पे स्टिक हो गए और ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाएगी, तब इसके पैरों में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो स्टिक हुए हैं वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर बैठ जाएंगे, तब हम इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसी के अंदर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गए हैं, तब ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव क्लियर्ड अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। Coming upon on the next, fertilization. How fertilization takes place, you can see here. Fertilization takes place when the is going to start when the pollen grain reaches on the place of stigma. पिस्टल पे के स्टिग्मा पर जब पहुंचता है तब पॉलिनेशन स्टार्ट, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। आफ्टर द pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enters the ovary and the ovule. In the ovule, the male germ cell, that is male gamete, fuses with the female germ cell, that is female gamete, to form a zygote. This process is called fertilization. Now I will explain you with the help of this diagram. What will happen? Stigma पर pollen grain आया, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट फ्लूइड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो गया और इसके अंदर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर निकला। इस स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा में से होता हुआ कहाँ चला गया, स्टाइल में से होता हुआ ये इसके ओव्यूल में एंट्री कर गया और ओव्यूल में एंट्री करने पर क्या होता है, ओव्यूल में होता है फीमेल जर्म सेल होता है, ये उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, यानी उसके साथ मिक्स हो जाता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिक्स हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़ होने का। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो विच देन डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है और उसके बाद जो सेल बनती है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है अल्टीमेटली वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सी इन दिस डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर। पॉलन ग्रेन कहाँ आया? यहाँ पे आया स्टिग्मा पर पिस्टल की, और यहाँ से इसमें एक यहाँ से जितना भी स्टिकी सब्सटेंस था, फ्लूट था, इसको इसने एब्जॉर्ब किया और इसमें से क्या रिलीज़ हुआ? इसमें से रिलीज़ हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिलीज़ हुआ जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं? इस पॉलन ट्यूब में होते हैं मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये मेल गैमीट क्या है? मेल सेल है। ठीक है, ये मेल सेल धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के डेवलप होने से ओव्यूल के पास आ जाती है। ठीक है, ओव्यूल के पास आने के बाद इसमें क्या हुआ? ओव्यूल के पास आने के बाद इसके अंदर जो ओव्यूल के अंदर जो एक फीमेल एग सेल है ये उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है और फ्यूज़ होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। The process of fusion of male gamete and female gamete is known as fertilization, and after this fertilization what will happen? Zygote will form, and this zygote after several cell division it will make a form into converted into an embryo which is converted into seed and then the ovary. When the seed is formed, the ovary is converted into fruit. You can see here in this diagram what will happen. This is the structure of ovule, internal structure of ovule having the egg cell here. ठीक है, एग सेल यहाँ पे है और ये जो ट्यूब के सेकंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? स्पर्म्स न्यूक्लियाई जो आए यानी मेल गैमीट्स जो आए, इन्होंने क्या किया? मेल गैमीट्स एग सेल से फ्यूज़ हो गए और अल्टीमेटली क्या हो गया? यहाँ पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जो फ्लावर, अब फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या क्या होते हैं फ्लावर में? कैलिक्स और कोरोला जो होता है फ्लावर का, कैलिक्स और कोरोला की पिक्चर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ।
this is known as calyx. You can see here in this picture. In this picture you can see this is calyx. ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है नीचे की तरफ जो फ्लावर के रिसेप्टेबल के ऊपर है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। जैसे आपने कैलिक्स देखा होगा ब्रिंजल में ऊपर की तरफ होता है कैलिक्स, दैट ग्रीन कलर स्टेम पार्ट कैलिक्स। इन कोरोला जो होता है वो उसकी पेटल्स को कहते हैं हम, जो कि डिकलर्ड होती हैं। सो व्हाट चेंजेस अकर इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? व्हाट हैपन? द कैलिक्स इन कैरोला वेदर फॉल ऑफ, ठीक है, कैलिक्स और कैरोला या तो गिर जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, और या फिर उनमें क्या हो जाता है, या फिर उनमें वो ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। द ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट, जैसा कि मैंने आपको बताया। द एम्ब्रियो टर्न्स इनटू द सीड। वंस द सीड बिकम मैच्योर, फ्रूट ड्राई अप, सो द डिस्पोजल ऑफ सीड कैन टेक्स प्लेस। अगर आप फ्रूट को प्लांट पे ही छोड़ देते हैं तो फ्रूट ड्राई हो जाता है और सीड्स उसमें से निकल के फैल जाती हैं, ठीक है। सीड के अंदर क्या होता है बच्चों? सीड के अंदर एक एम्ब्रियो रिजर्व्ड होता है। अगर उस एम्ब्रियो रिजर्व होता है, उसके अंदर कुछ रिजर्व फ्रूट मटेरियल भी होता है, और इस सीड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। जो रिजर्व फूड होता है वो फूड एम्ब्रियो को, जो उसके अंदर स्टोर होता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन